श्रीनगर में G20 मीटिंग के दौर से ग्रीन टूरिज्म के फरोग देने पर जोर देते हुए सियाहत के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में तमाम नुमाइंदों से मुलाकात की। Since eternity, Jammu Kashmir is known as crown jewel of India, and today I would like to say that it is a matter of great pride for 13 million citizens of this union territory to host this G20 meeting of Tourism Working Group that is deliberating on global architecture for sustainable tourism. Friends, Jammu Kashmir has always been a center of wisdom, knowledge, inclusive culture and breathtaking landscape that is divine to travelers. Famous poet Amir Khusro, while describing the natural beauty of Jammu and Kashmir in 13th century, had said, and I quote, "Gar Firdaus, Barwe Zamiyast, Hamiyasto, Hamiyasto, Hamiyast." If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. So it is not surprising that in the modern days, one of the oldest travel guidebook published at Lonely Planet chose to call Jammu Kashmir as Switzerland of India. Friends, for almost 30 years, this land of peaceful coexistence of almost all religious sects had to suffer state-sponsored terrorism by our neighboring country. However, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, through development schemes that empowers masses and Union Territories' effective administration, isolated the terror ecosystem which thrived with the support from across the border. Jammu Kashmir is witnessing a new era that has opened limitless possibilities of growth and peace. Now even foreign investments are also coming into Jammu and Kashmir. Green shoots of better times people are anxiously looking up to. Friends, I will run you through broad contours of our deep dive initiatives to demonstrate India's resolve that Jammu Kashmir should also benefit from the virtues of democracy like the rest of the states and union territories. Equally pertinent is that tourism cannot grow in isolation. The economics of it is fine. The tourism needs good infrastructure, sound policies and effective and responsive governance. No less fundamental to me is the fact that only peace and happiness of people can bring warmth in the hospitality we Indians eternally enjoy. And I would like to mention here that tourism in Jammu Kashmir is also a reflection of multi-religious and multicultural ethos of India. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास से खिताब किया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नए दौर का मुशाहदा करा है जिसने तरक्की और अमन के लामहदूद इम्कानात को खोल दिया है। अब गैर मुल्की सरमायाकारी भी जम्मू कश्मीर में आ रही है। कश्मीर की आबो हवा और यहाँ की ज़ियाफ़तों को चखने के बाद कल G20 डेलीगेट्स का सफ़र इसी मार्केट में पोलोव्यू मार्केट में इख्तिताम को पहुँचेगा। यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी उम्मीदें हैं
कि जब यहाँ से G20 डेलीगेट्स जाएंगे और अपने अपने मुल्कों में पहुँचेंगे तो कश्मीर का एक विरसा, कश्मीर का एक एहसास और कश्मीर की एक रूह लेके जाएंगे। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। जहांगीर अजीज के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। G20 के मंदुबीन मशहूर मुगल गार्डन्स का आज दौरा करेंगे। मंदुबीन हाल ही में तज़ीन नौ करदा पोलो वे मार्केट का दौरा करेंगे। ये मार्केट सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज़ बन गया है। इस ब्रिटिश इरा मार्केट में दस्तकारी और हैंडलूम की बहुत सी दुकानें हैं और दुकानदार पुरुम्मीद है कि दुनिया भर से आने वाले G20 के मंदुबीन इस बाजार में कश्मीर के हकीकी जौहर को देखेंगे। इस G20 का जो यहाँ इजलास हो रहा है, ये इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर की खूबसूरती इस G20 के इजलास की वजह से, जब ये मुंदुबीन रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने मुल्क में जाएंगे, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को ये प्रोपोगेट करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर का जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज जो है, जो टूरिज्म की है, वो इसे प्रमोट होगी। यहाँ से टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, यहाँ के ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार फराहम मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में जो वाकई आज अमन की राह पर गामजन है, जो जहाँ चारों तरफ आज खुशहाली और अमन आपको दिखाई दे रहा है, बल्कि ये जो है जम्मू कश्मीर आगे भी बुलंदियों को छूकर जो है जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनने वाला है। जम्मू कश्मीर ही इसके लिए चुना गया कि मेज़बानी के लिए। ये हमें बहुत ही बड़ी, हम खुशकिस्मत वाले लोग हैं कि हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारी टूरिज़्म में ग्रोथ हो जाएगी और ट्रेड में ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो बहुत से बच्चे ऐसे नशों में लगे हुए हैं कि उनको कोई जॉब है नहीं, इससे उनका जॉब भी खुल जाएगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिसने ये G20 यहाँ पर इसकी कन्वेंशन लगा दिया और हमें बहुत खुशी हुई है कि हम इसके लिए चुने गए हैं। अगर हम 2008 से देखें तो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक ऐसी तस्वीर दर्शाई बाहरी मुल्कों में कि यहाँ पे हालात कुछ इस तरह बनाए गए, एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह क्रिएट किया गया कि लोग जो है वो परेशान थे, ट्रेड पूरा ठप बैठा था। जब से श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ की भागदौड़ वापस संभाली, तब से अगर हम देखें तो ट्रेड में भी वापसी आई। आज G20 का इजलास यहाँ पे हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो है यहाँ पे टूरिज़्म फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। उससे जो है कहीं ना कहीं सारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर जो है J&K के रीढ़ की हड्डी है। इससे कितने लोग चलते हैं, घोड़े वाले हो, ट्रैवल एजेंसीज हो, ड्राई फ्रूट हो, कश्मीर आर्ट हो, ये सब जो तबके हैं वे वापस आएंगे और इकनॉमी को बूस्ट मिलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।